جانی بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کی گئی ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعلان وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کر کے کیا۔ حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کیا ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اپریل کے بعد سے اب تک عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل ہے اس کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور حکومت پاکستان جو کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر چکی ہے، 50 روپے تک لیوی وصول کرنا ہے 1 لیٹر پیٹرول پہ، اس کی اجازت پارلیمنٹ سے لی گئی ہے۔ بہرحال ان پابندیوں اور اس معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ریلیف کو دیر سے ہی صحیح لیکن آج عوام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ 10 روپے کی کمی کا اعلان ہوا ہے۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات بھی کر لیتے ہیں۔ اشرف، کہیے گا 10 روپے کی کمی ہو چکی ہے پیٹرول میں، ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 7 روپے، عوام کیا کہتے ہیں؟ اور پیٹرول پمپ بند ہونے کی بھی ایک روایت ہے، کھلے ہیں یا بند ہیں ابھی؟ جی، ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو پیٹرول پمپ تو ابھی کھلے ہیں، کیونکہ رات 12 بجے تک جو ہے فیول کی پرائس جو کم ہو جائے گی 12 بجے کے بعد سے، اور وزیر خزانہ نے جو بڑا اعلان کر دیا ہے، عوام کو بڑا ریلیف ملا ہے کہ جو پیٹرول بہت مہنگا تھا جس سے عوام پریشان تھی، قریب عوام اس کو کچھ ریلیف ملا ہے۔ جیسے پیٹرول کی بات کریں، فی لیٹر پیٹرول 10 روپے سستا ہو گیا اور وہ کم ہو کر 214 روپے 80 پیسے پر فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بات کریں، جیسے بسیں اور ٹرانسپورٹ میں اور گڈ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہے، وہ بھی 7.5 روپے سستا کر دیا گیا ہے، 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل بھی 10 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا، جو کہ 70 روپے 83 پیسے پر لیٹر ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بات کریں جو کہ آپ کی زراعت کے سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے، جس میں کہ آپ کا جیسے پمپس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں 10 روپے سستا کر دیا گیا ہے، 169 روپے کا ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے جو مہنگائی کی رفتار بڑی بھی تھی، اس میں بنیادی جو اس کا ایک جو تھا کہ پیٹرول مہنگا تھا، پیٹرولیم مصنوعات ایندھن کی قیمت اس میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بڑا ریلیف تو ملا ہے، لیکن دیکھا جائے عمومی طور پہ جب یہ بڑا ریلیف کا اعلان ہوتا ہے، جب اچانک سے پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ پیٹرول فروخت کرنا روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ابھی تک اپڈیٹ آ رہی ہیں، کیونکہ یہ 15 تاریخ ہے آج، اور یہ 16 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک یہ ریس رہے گا۔ اگلے 16 روز کے لیے یہاں پہ حکومت نے اعلان کیا ہے، اور یہاں پہ دیکھا جائے جس میں وہ پیٹرولیم ڈیلر کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کی فروخت بند کر دیتے ہیں، اور اگر یہ روکتے بھی ہیں تو اس کو نئی قیمت تو ہر صورت بیچنا ہی ہوگا، اضافی قیمت بیچتے ہیں تو اوگرا ایکشن لیتا ہے۔ اور یہاں پہ جو دیکھا جائے اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں، اس سے جو مہنگائی کی بڑھتی ہوئی رفتار ہے اس کی جو رفتار میں کچھ معمولی سی کمی آئے گی، کیونکہ بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں 224 روپے کا جو پیٹرول تھا اس میں 10 روپے کی کمی ہوئی ہے، تو دیکھا جائے تقریباً 5% کی کمی ہوئی ہے پیٹرول میں، اور ڈیزل میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 3.5% کی کمی ہوئی ہے، جو 7.5 روپے فی لیٹر سستا ہوا ہے۔ اس کا امپیکٹ اگر ہم دیکھیں مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں کچھ اس کی رفتار میں کمی آئے گی، اس کا امپیکٹ جو ہے دوسری چیزوں پہ آئے گا، جیسے گڈ ٹرانسپورٹ کے کرائے جو بڑھ گئے تھے بہت زیادہ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے، اس میں کچھ ریلیف ملے گا۔ اور یہاں پہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو ایک ریلیز ملا ہے 10 روپے لیٹر کا، اس سے جو ان کی بنیادی اخراجات ہیں اس سے کمی ہوگی۔ اس وقت مہنگائی کی رفتار ہے جس وجہ سے عوام کی قوت خرید کم ہو گئی تھی، اس کا بھی بوجھ کم ہوگا۔ اور یہاں پہ عوام نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اس کے بعد حکومت نے بھی بڑا فیصلہ لیا ہے کہ 10 روپے لیٹر پیٹرول سستا کیا ہے۔ اس سے مزید گنجائش ہو سکتی تھی، کیونکہ اس وقت پیٹرول پہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 50 روپے فی لیٹر وصول کر رہی ہے حکومت، جبکہ سیل ٹیکس صفر ہے۔ ڈیزل پہ بھی اسی طریقے سے دیکھا جائے 25 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرولیم لیوی لی جا رہی ہے، جس میں 50 روپے تک لے کر جانا ہے حکومت نے، کیونکہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہ 50 روپے لیوی عائد کرنی ہے۔ پیٹرول پہ تو حکومت جو ہے 50 روپے لیوی وصول کری ہے، لیکن ڈیزل پہ ابھی بھی 25 روپے کا فرق باقی ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف خان۔ یونیورسٹی روڈ پر ڈکیتی کے دوران قتل کے واقعے کے قریب ہی رہائش پذیر بزرگ شہری بتاتے ہیں کہ گھر پر گولیوں کی آواز سنی تو جا کر دیکھا نوجوان زخمی پڑا تھا اور ڈکیت بھاگ رہے تھے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں جب دیکھا گولیوں کی آواز آئی، میں فوراً اپنے یہاں سے آگے دیکھا لوگ بھاگ رہے تھے۔ پھر جب میں ادھر آیا نا اپنی گیلری میں، یہاں سے دیکھا وہ بندہ گر چکا تھا، مگر یہ لوگ گولیاں چلاتے ہوئے بھاگے ایسے یہاں سے، اور یہ محل گولی لگی مجھے لگتا وہ سمجھے ہٹ کر، اور اس میں کئی انسان ایسے سامنے ایسے واقعہ ہونے نہیں چاہیے
यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, ये तो बल्कि 20 दिन पहले भी होया ये काम। इनको यहाँ पे 15 मोबाइल लूट के लेके गए। न्यूज़ वो पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप के साथ ही है, वहाँ पे उनको सुबह सुबह लूटा है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की 12वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब ओछा कैंपस में मुनाकिद हुई, जिसमें 2082 फारुगुल तहसील तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सजा 12वां सालाना कॉन्वोकेशन। यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने वाले 2082 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 2 बैनुल-अक़वामी ट्रांसप्लांट सर्जन्स को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी डिग्रियों समेत 111 तलबा को गोल्ड, सिल्वर और कांसी के मेडल दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने तलबा में डिग्रियां तकसीम की। तकरीब में तमाम प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, तलबा और तालिबात और उनके अहले खाना ने शिरकत की। वालिदैन और तालिब इल्मों ने डिग्री मिलने पर खुशी का इजहार किया। मेरा प्रोफेशन एक्चुअली डायटेटिक्स है एंड अभी पाकिस्तान में ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई एम जस्ट लीडिंग पर्सन स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बहुत सारी फील्ड्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ही MBBS के थ्रू आ रहे होते हैं, तो इस फील्ड से इमर्ज होकर एक डॉक्टर डिग्री लेना इज़ क्वाइट चैलेंजिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बहुत फ़ख्र का मौका है मेरे लिए, बहुत मेहनत की है इसके लिए हम लोगों ने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, पेरेंट्स की दुआ रही है हमारे साथ ही साथ आपकी स्ट्रगल, मेहनत, रातों को जागना, पढ़ना, 10-10 घंटे पढ़ना, इस तरह जो मतलब एक जर्नी होती है, फिर साथ में कभी बंक करके दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो मतलब हर तरह की चीज़ें होती हैं और वो इन्जॉय करते करते जब हम आते हैं तो कहते हैं कि 4 साल कब गुजरेंगे, 5 साल कब गुजरेंगे, जब आते हैं तो ये टाइम यूँ गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। सालाना तकरीब तकसीम इसनाद में पाकिस्तान के 2 मशहूर सर्जन्स प्रोफेसर मुहिउद्दीन और प्रोफेसर फैसल डार को एजाजी डिग्री से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि डाउ यूनिवर्सिटी अपने मेयार को बरकरार रखेगी। उन्होंने तमाम तालिब इल्मों और वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की। I admit you to the degree of Master of Dental Surgery, Master of Science in Dental Surgery and Dental Sciences, Master of Science in Advanced Physiotherapy, Master in Nursing, Master of Public Health, Master of Science in Public Health। तकरीब में डाउ मेडिकल और इंटरनेशनल कॉलेज, ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज, डाउ डेंटल और इंटरनेशनल कॉलेज, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डाउ यूनिवर्सिटी और उससे मुल्हिका दीगर इदारों के तलबा और तालिबात में डिग्रियां तफ्वीज़ की गईं। कराची में सर्दियों के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला कम नहीं हो सका है। किसी मकाम पर 12 तो कहीं कहीं 15 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी सख्त परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे सादत हुसैन से। जी सादत। इस वक्त हम लियारी के इलाके बगदादी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और किससे कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं आपको? सर जी तकरीबन इस बार 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। लाजिम बात है, कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है इससे। एक तो लाजिम बात है बिजली तो है नहीं, ऊपर से गैस भी नहीं आता, यानी कि अगर आप जनरेटर चलाना चाहो गैस पर तो उससे भी आप महरूम हैं। अच्छा, अमूमन देखते हैं हम कि गर्मियों में जो है लोड शेडिंग ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन अब तो सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, तो इसमें कुछ मुतालबा करेंगे आपके इलेक्ट्रिक से? ये बिल्कुल जो है ना जुल्म है। सर्दी में वैसे ही बिजली इस्तेमाल नहीं होती, ना AC बंदा चलाता है, ना ज़्यादा पंखे ऑन करता है। लाजिम बात है सर्दी है, इन तकरीबन विंटर के सीज़न में नहीं होना चाहिए लोड शेडिंग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इलाका मकीन का कहना है कि हमें जो है इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे जो कारोबार हैं वो भी इससे शदीद मुतासिर होते हैं। जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची ने शहराए पाकिस्तान और सदर इम्प्रेस मार्केट बरास्ता एमजीना रोड टावर इंसदाद तजावुज़ात की बड़ी कार्रवाई करके सैकड़ों की तादाद में तजावुज़ात ज़ब्त कर ली हैं। रिजवान की रिपोर्ट देखिए। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC इमरान राजपूत की सरबराही में एमजीना रोड और शहराए पाकिस्तान को तजावुज़ात से पाक करके मॉडल सड़क बनाने के लिए इक़दामात का आगाज़ हो गया। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी काम कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हार्ड इंक्रोचमेंट भी काम कर रहे हैं। हम लोग किसी के साथ इम्तियाज़ नहीं बरत रहे, हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ दिन के बाद ये जो मॉडल रोड का एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, उसके ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह आपको काम करके दिखाएंगे।
मंसूबे के तहत पहले रोज इम्प्रेस मार्केट, एम जिना रोड से टावर, सैकड़ों की तादाद में ठेले, पथारों समेत दीगर तजाविजात जब्त कर ली गईं। शाहराह पाकिस्तान पर 3 हट्टी से सोराब गोड भी सड़कों और फुटपाथों से तजाविजात का खात्मा किया गया। हुक्काम के मुताबिक तजाविजात के खिलाफ कार्रवाई मजीद 2 रोज तक जारी रहेगी। जो दुकानदार हजरात ने जो है अपने एक्स्ट्रा सामान उस पर रखा है उसको खाली कर रहे हैं। छज्जे एक्स्ट्रा जो दोबारा बन गए हैं, माजी में सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे हमने उसको रिमूव किया था, तो अब वो दोबारा रिमूव कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन आपके साथ हम लोग काम करते रहते हैं। मुख्तलिफ डिवीज़न्स में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हडल्स आ रही हैं आवाम के चलने के अंदर और लोगों को दुश्वारी है, जिसमें ये एक डाखाना है, लियाकताबाद 10 नंबर है और नागन चौरंगी है। इस तरह की जो हुई जगह है जहाँ पर लोगों को दुश्वारी हो रही है, हम रूटीन में वहाँ वर्किंग करते रहते हैं। तजाविजात के खिलाफ कार्रवाई से सड़कें कुशादा और फुटपाथ क्लियर हो गईं। ताहम शहरियों के जहनों में ये खदशात बदस्तूर मौजूद हैं कि माजी की तरह कब्जा माफिया शहर में दोबारा तजाविजात कायम कर लेगा। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा सैयद रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सौदाकार यूनियन के चुनाव के लिए 3 साल की ताख़ीर के बाद रेफरेंडम का इनेकाद किया गया, जिसमें लेबर यूनियन ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए, ताहम इंतखाबी अमल पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल हो गया। फरामी आब व निकासी के 8वें रेफरेंडम का इनेकाद लेबर डिपार्टमेंट की जेर निगरानी हुआ, जिसके लिए शहर कायद समेत धाबेजी, चिलिया और हब समेत मुख्तलिफ मकामात पर 34 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए, जहां 9,202 वोटर्स को हक राय दही इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम की गई। साबिक CBA, मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट और यूनाइटेड वर्कर्स फ्रंट ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबी धांधली की सरकारी सतह पर कोशिशें की गईं। हम सुबह से अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी काम कर चुके हैं अपने उस पर। उन्होंने बाहर से ला के बिठाए हुए हैं सरकारी यूनियन, सरकारी लोग, जिसको हम तकरीबन लोग जानते हैं कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, और हमारे यहाँ सिर्फ हमारा कारकुन है या वोटर बैठा हुआ है। पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो उतरी हुई है, अपनी मर्ज़ी के अफसरान जो है वो वहाँ तैनात कराए गए हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वहाँ तैनात कराए गए, और मतलब पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी जो धांधली की जाए। पीपल्स लेबर यूनियन के जिम्मेदारान ने इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि हमारी मकबूलियत के बदौलत मुखालफिन की नींदें हराम हो गई हैं। हर आदमी अपने तौर पर मुतमईन है। असल में सामने जो हमारे साबका CBA आप देख रहे हैं, उनके कैंप खाली पड़े हुए हैं, और उनका जो था जो उन्होंने कोशिश करी थी वो नाकाम हो चुकी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई है, और इदारे में तमाम एम्प्लॉइज़ जो है वो अपने हक़ के राय दही का इजहार कर रहे हैं, और जो है आप देख रहे हैं फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन हो रहे हैं। CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन का कहना है कि इंतखाबी अमल के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गईं, मुंतखब CBA को वेलकम करेंगे। जो भी सेलेक्ट होकर आता है, इंतज़ामिया का काम है कि उनको फैसिलिटेट करना और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना। तो हमारे नज़दीक ये एक प्रोसेस है जिसको रेगुलर बुनियादों पे होना चाहिए, जैसे लॉ कहता है, और यही मेरी पहली स्टेटमेंट थी जब मैंने ज्वाइन किया था कि ये रेगुलर प्रोसेस से होना चाहिए, और ये अच्छी बात है। इंतज़ामिया जैसे किसी और इदारे में सपोर्ट कर सकती है, हम उस तरह सपोर्ट करेंगे। पोलिंग का आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसके लिए पुलिस और रेंजर्स ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा सैयद रिजवान अहमद, सिटी 21। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय के शौकीन अफराद आज चाय का आलमी दिन मना रहे हैं। यूँ तो कराची भर में जगह जगह चाय के होटल्स और ढाबे मौजूद हैं, मगर II चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़े बेगम गली की चाय की बात ही निराली है। शहरी चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। चाय पे तो मेरी जान भी कुर्बान, मैं तो दिन में 6-7 मरतबा पीता हूँ, ठीक है। चाय नहीं पीऊँ तो मेरे दिमाग काम नहीं करता है। चाय का दिन है हमारा, ये गरीब की चाय ये थकावट दूर करती है, माशाल्लाह ये मतलब सुकून देती है। ये चाय देखो सस्ता भी है और ये फ्रेश भी रखता है, 2-3 मरतबा हम पी लेते हैं दिन। चाय के कुछ तिब्बी फ़वाइद भी हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग रोजाना गर्म चाय पीते हैं वो दीगर लोगों के मुकाबले में आँखों के बड़े अमराज जैसे अंधापन और काले मोतिया वगैरह से महफूज रहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।